Hello students, this is Dr. Aftab Ansari and welcome all of you in the new video lecture of microbiology. Today we will discuss about the rest part of plasmodium. In previous lecture we have discussed about its introduction, its morphology and also the life cycle type. Means ki three important topic we have discussed in the previous lecture. Today the rest part, mainly its pathogenicity and lab diagnosis, and last one is treatment and prophylaxis, which we have to discuss in today's lecture. So let's come to the first point. The first point is the pathogenicity. So as we know that man got its infection, means plasmodium infection, by the bite of female Anopheles mosquito, because when female Anopheles mosquito bite already present the trophozoite, means a form of plasmodium, that is trophozoite, already present in the female mosquito saliva. When it bites to the human body, through its proboscis reach into the human blood, and this process man got its infection. This is the one main method to got its infection in the human body, and the second one is through the transfusion of blood of diseased patient to the normal one. Means ki if the diseased patient's blood are transfused to one normal human body, then also it will infect to the normal one. And the third process by which it can transfer through the placenta to the developing child from the mother. If mother is infected from this malarial parasite, means plasmodium, then most probably it is possible that the plasmodium may enter into the developing child inside the uterus through the placenta. So this is the completion of pathogenicity, means ki how the human body got infection of the plasmodium. So there are the three way: mosquito bite, one is the infected blood transfusion, and third one is the through placenta from mother to the developing child inside the uterus. Now we will discuss its clinical features, what kind of symptom are produced by the malarial parasite. So as shown in your screen, malaria is a quite dramatic disease. Following symptoms appear in fever case. Dramatic disease, because dramatic means there are different kinds of the symptoms. Symptom are appear when the body infected by the plasmodium. So it is called as the dramatic. The first, cold stage, hot stage and sweating stage. There are the three different stages come when the human body got the infection of the plasmodium. First is the cold stage, severe shaking, chills, teeth chatters, कहता नहीं बहुत तेज ठंडी लगती है उसको, और एकदम कपकपी से ऐसा दांत न कटकटाने लगते हैं, उसको चीटर कहते हैं, उसको टीथ चिटर्स, इस तरीके से ठंडी उसको लगने लगती है in the infection of the plasmodium. And next one is the hot stage. Hot stage, temperature will rise from 41 centigrade to 106 centigrade with headache. और बहुत तेज़ क्या होगा उसको ना, बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा, एंड आल्सो इट कॉज द हेडेक, आल्सो एक सिम्टम प्रोड्यूस करेगा ये. नेक्स्ट वन इज़ द स्वेटिंग स्टेज. व्हेन द टेम्परेचर लोअर्स, स्वेटिंग प्रोफ्यूजली. क्या होता है ना कि जब टेम्परेचर जैसे डाउन होगा तो बहुत तेज़ी से उसमें पसीना निकलेगा. So this is the three stages: cold stage, hot stage, and last one is the sweating stage.
एनीमिया आल्सो कॉज, मैंने बताया था आपको कि एनीमिया इसलिए कॉज करेगा क्योंकि ये ब्लड बनाने वाले सिस्टम को ही ख़राब करता है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, तो एनीमिया कॉज करेगा। एनीमिया इज़ द हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है, इसमें ब्लड की मात्रा कम होने लगती है, दिस इज कॉल्ड द एनीमिया। तो ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी को डिस्ट्रक्ट कर देना, डिक्रीज इन कार्पोरेशन ऑफ आयरन एंड हीमोग्लोबिन। जब आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आयरन और हीमोग्लोबिन का जो एक लेवल होता है वो कम हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एनीमिया कॉज करेगा। मीन्स कि हीमोग्लोबिन की लेवल डाउन हो जाएगी क्योंकि इसमें आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है ये प्लाज्मोडियम। बोन मैरो सप्रेशन रिजल्टिंग एनीमिया, और बोन मैरो जहाँ से सारे ब्लड सेल्स फॉर्म करते हैं उस बोन मैरो को ही डिस्ट्रॉय करता है ये। सो रिजल्टिंग इन कॉन्सिक्वेंसेज एनीमिया इज कॉज, मीन्स कि जो उसका रिजल्ट है वो एनीमिया कॉज कर जाएगा। नेक्स्ट वन द स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन गेट एनलार्ज एंड palpables due to the massive proliferation of the macrophages. स्प्लीनोमेगाली मीन्स स्प्लीन गेट एनलार्ज, स्प्लीन बॉडी के अंदर होता है, स्प्लीन एनलार्ज कर जाएगा एंड पैल्पेबल्स हो जाएगा ड्यू टू द मैसिव प्रोलिफरेशन ऑफ मैक्रोफाजेस। when the plasmodium get enter into the spleen, there are the different macrophages are also aggregate in that areas where plasmodium got entered, due to which there is causes of the enlargement of spleen. तो यहाँ पर जब प्लाज्मोडियम एंट्री कर जाता है स्प्लीन में तो बहुत सारे मैक्रोफाजेस उसके पीछे पीछे चले जाते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, किसको, प्लाज्मोडियम को मारने के लिए। तो ढेर सारे वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं मैक्रोफाज, जिससे पैल्पेबल कॉज करता है, मीन्स कि वहाँ पे कुछ फूला हुआ भाग, बड़े बड़े छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन जाते हैं उसमें स्प्लीन में। दिस इज़ कॉल्ड एज द स्प्लीन मेगाली, और स्प्लीन बढ़ जाता है। और पर्नीशियस एनीमिया आल्सो ए काइंड ऑफ एनीमिया, इसमें क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड हीमोग्लोबिन कैन नॉट सिंथेसाइज्ड प्रॉपरली एंड लीड्स इनटू एनीमिया। इसमें क्या होता है कि विटामिन B12 नहीं बन पाता है एंड हीमोग्लोबिन कैन नॉट सिंथेसाइज्ड, और हीमोग्लोबिन जिसकी वजह से नहीं बन पाता है बिकॉज देयर इज़ द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, सो देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, सो अल्टीमेटली इट कॉज द anemia, and this type of anemia is called as the pernicious anemia. Now the next, cerebral malaria. It is also a kind of its clinical feature. In this cerebral malaria, severe case of anemia. This is the severe case of anemia. means कि ये बहुत भयानक रूप ले लेती है जब एनीमिया तब का होता है ये। This is the severe case of malaria of Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum के इन्फेक्शन से ये कॉज करता है, लीड्स टू डेथ, और क्या कॉज कर जाएगा, वो डेथ कॉज कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ द एल्जिड मलेरिया। एल्जिड मलेरिया में क्या होगा, वोमिटिंग होगा, डायरिया कॉज करेगा एंड डिसेंट्री और डायरिया बोथ आर द सेम, मीन्स कि इन एल्जिड मलेरिया वोमिटिंग इज द क्लिनिकल फीचर इज वोमिटिंग एंड डायरिया और डिसेंट्री में कॉज। In last one, the septicemia malaria, prostration extremely weak, means कि after the infection of the malaria a terminology used septicemic malaria. In septicemic malaria used for the extremely weak patient due to high grade fever. जब बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, दिस इज कॉल्ड एज द septicemic malaria. Now this is the one very important point, Blackwater fever. This question also this question is also very important and asked in previous examination that what is the means of the Blackwater fever. तो Blackwater fever का मतलब ये होता है कि जब हम इन्फेक्टेड पर्सन को, जब किसी में मलेरिया कॉज कर जाता है और उसको हम जब दवा देते हैं, दवा के रूप में हम क्यूनिन नहीं देते हैं, क्यूनॉन ही होता है, इसका इम्पोर्टेंट ड्रग होता है इसको किल करने के लिए प्लाज्मोडियम को। तो जब इसकी दवा को हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारे ये
आरबीसी को भी किल कर देता है, और आरबीसी जब किल कर देता है तो वो हीमोग्लोबिन फ्री हो जाते हैं। तो वो हीमोग्लोबिन क्या होता है, यूरिन के थ्रू बाहर आने लगता है वो शरीर से, और वो कुछ ब्लैक कलर का हो जाता है वो हीमोग्लोबिन यूरिन में मिलने के बाद। एंड दिस इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज द ब्लैक वाटर फीवर, which is this is a very important for your examination point of view. Let's study about it. Means black water fever. The mechanism of black water fever is not known exactly. Means ki the mechanism how the black water fever is caused, but sometime consumption of quinine, a kind of the drug, anti-malarial drug, which is taken in the treatment of malaria, causes क्रॉस रिएक्शन। ये एक क्रॉस रिएक्शन कॉज करता है, रिजल्टिंग ए मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। मीन्स कि इट डिस्ट्रॉय, क्यूनॉन डिस्ट्रॉय द आरबीसी, मैसिव डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड ड्यू टू सच डिस्ट्रक्शन हीमोग्लोबिनुरिया अकर्स, which indicated by black coloration of urine। यूरिन ऐसे इन्फेक्शन में जब आरबीसी बहुत किल कर जाता है तो इसको हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का, तो इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन्यूरिया बोलते हैं इसको। एंड अकर स्विच इंडिकेटेड बाय द ब्लैक कलरेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। एंड हाई ग्रेड फीवर कॉल्ड ब्लैक वाटर फीवर, इसको क्या बोलेंगे हम, ब्लैक वाटर फीवर। मीन्स कि यूरिन ब्लैक हो जाता है और इसके साथ साथ क्या होगा कि फीवर भी बहुत ज़्यादा होगा, देन इट इज़ कॉल्ड एज द ब्लैक वाटर फीवर। एक्सक्रीशन ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन इन द यूरिन, यूरिन में क्या होगा, और इसमें बताया गया है कि जो इसमें हीमोग्लोबिनुरिया जो कॉज करता है उसका मतलब यही है कि इसमें जो एक्सक्रीशन ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन इन यूरिन, यूरिन में बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन इकट्ठा हो जाता है, जिससे वो रेड क्या, वो बिल्कुल ब्लैक नज़र आने लगता है, यूरिन बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, कहने का मतलब ये है। और इसमें फीवर भी बहुत ज़्यादा होती है। तो दिस इज़ द ब्लैक वाटर फीवर एंड मे आस्क इन योर एग्जामिनेशन टू as a separate question। means कि as a what do you know about black water fever, and also may ask what do you know about black water fever and its causative agent, ऐसे करके question। now the next and important point of this chapter means its lab diagnosis। means कि how the way we can diagnose the person which is infected by the plasmodium। यहाँ पे है blood is the taken as a sample। तो यहाँ पे जब इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को हम ले सकते हैं और उससे हम उसके प्लाज्मोडियम की स्टडी कर सकते हैं कि उसके बॉडी में प्लाज्मोडियम है या नहीं है। यहाँ पे नोट दिया गया है, प्लाज्मोडियम डज नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करता है। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे माइक्रोस्कोपी करके कि हम ब्लड ले लेते हैं तो ब्लड को एक थिक स्मेयर और एक थिन स्मेयर बनाते हैं। थिक स्मेयर मतलब कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हम लेते हैं ब्लड को, और एक मोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और थिन स्मेयर में थोड़ा पतला स्मेयर बनाते हैं, पतला स्ट्रक्चर बनाते हैं स्लाइड पे, और उसको माइक्रोस्कोप में लगा के देखते हैं। तो हम पहले जानते हैं कि माइक्रोस्कोपी में पहले थिक माइक्रोस्कोपी क्या होती है। थिक स्मेयर ऑफ ब्लड प्लेस्ड ऑन स्लाइड पे एक ज़्यादा सा हम ब्लड लेकर उसको रखते हैं उस स्लाइड पर, बिफोर प्लेस अंडर द माइक्रोस्कोप and before place under the microscope, this thick smear stained with Giemsa stain, a kind of stain which color the specimen into red color to give the parasite a distinct appearance। एक डिफरेंट अपेयरेंस देने लगता है उस पैरासाइट का, क्योंकि उसमें जिम्सा स्टेन से उसको कलर कर दिया गया है। The thick smear, इसमें this is the important point, the thick smear not is the important, the thick smear not fixed in methanol। methanol में इसको फिक्स नहीं करा गया। methanol में फिक्स करने का एक दूसरा प्रोसेस है, और फिक्स क्यों करा जाता है भी हम बताएंगे अभी। फिक्स्ड इन इसको जो थिक स्मेयर ब्लड का बनाया गया है टू डिटेक्ट द प्लाज्मोडियम विच इज़ नॉट फिक्स्ड इन द मेथेनॉल में उसको फिक्स नहीं किया गया है, विच अलाउड टू द रेड ब्लड सेल टू बी हीमोलाइज्ड। और क्या करता है कि वो मलेरिया जो विच अलाउड द रेड आरबीसी को क्या करता है,
रेड ब्लड सेल्स को टू बी हीमोलाइज करे रहता है उसको। एंड मलेरियल पैरासाइट प्रेजेंट, और उस आरबीसी के अंदर जो मलेरियल पैरासाइट होगा, मीन्स कि जो प्लाज्मोडियम होगा, विल बी द ओनली डिटेक्टेबल एलिमेंट। वहाँ पर बहुत आसानी से वो दिखेगा। जब हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पर मेथेनॉल यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से नज़र आएगा। अगर नहीं यूज़ करेंगे तो हीमोलाइज नहीं होगा। मलेरियल पैरासाइट प्रेजेंट detectable element. However, the hemolysis of RBC leads to distorted plasmodial morphology. क्या होता है कि जो hemolysis of मीन्स यहाँ पे मार्फोलॉजी जब हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं, इसको मेथेनॉल को यूज़ नहीं करते हैं, तो आरबीसी के अंदर जो वहाँ पे मौजूद मलेरियल पैरासाइट है, मीन्स की जो प्लाज्मोडियम है, उसकी मार्फोलॉजी हो जाएगी मेकिंग डिफ़िकल्ट ऑफ स्पीसीज़ डिफरेंशिएशन। बस ये तो पता चलेगा कि हाँ मलेरियल पैरासाइट है, मगर कौन सी स्पीसीज़ का है ये थिक स्मेयर में पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर हमने क्या नहीं मीथेनॉल से उसको फिक्स नहीं किया था। Difficult of species differentiation, therefore thick smear are mainly used to detect infection. थिक स्मेयर सिर्फ ये जानने के लिए यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब कि इन्फेक्शन किस चीज़ से है। क्वालिटेटिव टेस्ट है ये। क्वालिटेटिव का मतलब कि इसमें कंफर्म करना है कि इसमें मलेरियल पैरासाइट है कि नहीं है, बस। एंड एस्टिमेट पैरासाइटीमिया है कि नहीं है, और इसमें वो प्लाज्मोडियम है कि नहीं, सिर्फ इतने को जानने के लिए हम थिक स्मेयर तैयार करते हैं। और जैसे भी हमने थिक स्मेयर तैयार किया था, ऐसे बिल्कुल हम थिन स्मेयर भी तैयार करेंगे। द सैम्पल इन द थिन स्मेयर, द सैम्पल फिक्स्ड इन मेथेनॉल। वहाँ पर मिथेनॉल में फिक्स नहीं करा गया था, यहाँ पे करा जाएगा। द थिन स्मेयर अलाउ द एग्जामिनर टू आइडेंटिफाई मलेरियल पैरासाइट्स स्पीसीज़। मलेरिया की जो स्पीसीज़ होगी, प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज़ होगी, बहुत आसानी से पहचानी जाएगी, या उसको हम पहचान पाएंगे, या उसकी मार्फोलॉजी बहुत एकदम क्लियर रहती है इस थिन स्मेयर में। और क्वांटिफाई पैरासाइटीमिया, और कितने नंबर्स में है ये भी हम जान पाएंगे। और एंड रिकॉग्नाइज पैरासाइट फॉर्म लाइक, और उसके फॉर्म को भी बता देगा कि वो साइजोंट है, या वो गैमेटोसाइट है, या वो ट्रोफोजोइट है। इन सब चीज़ों को जानकारी के लिए हम थिन स्मेयर का ही यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट वन द इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक। इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक में क्या करते हैं, एलिज़ा यूज़ करते हैं। एलिज़ा टेक्निक हमने आपको पढ़ाया है। एलिज़ा टेक्निक क्या होता है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसार्बेंट एसे। दिस मेथड यूज्ड एज ए सॉल्युबल मलेरियल एंटीजन। सॉल्युबल मलेरियल एंटीजन को हम कोट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ ए माइक्रोटाइटर प्लेट। एक माइक्रोटाइटर प्लेट होती है, और उस पर हम क्या करते हैं, मलेरियल एंटीजन को कोट कर देते हैं। इफ़ द टेस्ट इज़ पॉजिटिव, द एंटीबॉडी बाइंड्स द एंटीजन रिजल्टिंग इन विजिबल कलर चेंज व्हेन द टेस्ट इज़ नेगेटिव। क्या होगा इसमें कि दिस मेथड यूजेज एज ए सॉल्युबल मलेरियल एंटीजन कोटेड। सॉल्युबल मलेरियल एंटीजन को ही हम डिटेक्ट करते हैं यहाँ पर, और जो मलेरिया की जो एंटीजन होती है उसको डिटेक्ट करते हैं इस एलिज़ा में, और कोटेड ऑन द वॉल ऑफ ए माइक्रोटाइटर प्लेट। और माइक्रोटाइटर प्लेट कोटेड होता है। इफ़ द टेस्ट इज़ पॉजिटिव, द एंटीबॉडी बाइंड्स द एंटीजन। तो उसमें जो कोटेड होगा एंटीबॉडी से, इसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम यूज़ करते हैं, और वो माइक्रोटाइटर बेल पे कोट करते हैं, और वो अगर मौजूद होगा एंटीजन उसमें ब्लड में, तो वो उसको क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा वो। इफ़ द टेस्ट इज़ पॉजिटिव, द एंटीबॉडी बाइंड्स द एंटीजन। तो एंटीबॉडी जो कि हमने ले रखा है पहले से, उसको कोटेड कर रखा है, वो एंटीजन को बाइंड कर लेगा, रिजल्टिंग इन विजिबल कलर। इसमें क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। व्हेन द टेस्ट इज़ नेगेटिव, इन द एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, अगर एंटीबॉडी एब्सेंट नहीं है वहाँ पे, देयर इज़ नो चेंज ऑफ कलर ऑफ द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट का कलर वहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो दिस इज़ द एलिज़ा। फिर नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे एक अच्छा तरीका होता है, वो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। इसको किट मेथड भी बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट में।
द रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ ए डिवाइस, एक छोटा सा किट होता है, एक स्ट्रिप टाइप की होती है, दैट कैन डिटेक्ट मलेरियल एंटीजन, मलेरिया के अंदर जो एंटीजन है उसको वो डिटेक्ट करता है इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड। एक या दो ड्रॉप हम ब्लड ले लेते हैं, एक दो बूंद ब्लड का लेते हैं, उससे पता चल जाता है बाई इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक एसे। इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक, वहाँ पे एक स्ट्रिप लगी होती है और उसमें कलर को चेंज करता है वो एंटीजन, कलर चेंज इन एंड एब्जॉर्बिंग इंट्रोसेलुलोज स्ट्रिप, जो एक उसमें स्ट्रिप लगी होती है उस किट में, उसमें कुछ लाइंस बनी होती हैं, उसी लाइंस का कुछ कलर चेंज होता है जब हम उस पर ब्लड डालते हैं। तो विथ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, उसमें ऑलरेडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पहले से उसमें बना होता है उस मलेरिया का, डिटेक्ट अगेंस्ट द पैरासाइट एंटीजन, और उस पैरासाइट का जो एंटीजन होगा, अगर पैरासाइट का एंटीजन ब्लड में होगा और ब्लड को हमने स्ट्रिप पे डाला या टेस्ट किट पे डाला, तो क्या करेगा, जो टेस्ट किट में पहले से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, तो अगर वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है जो कि हमारे स्ट्रिप में पहले से मौजूद होता है, अगर वो एंटीबॉडी अगर मलेरिया का पैरासाइट होगा तो उसमें जो भी एंटीजन होगा तो उस पर्टिकुलर एंटीजन को वो बाइंड कर देगा और कलर चेंज कर देगा। अगर नहीं होगा, उसमें एंटीजन नहीं होगा, तो वो कलर चेंज नहीं कर पाएगा वो एंटीबॉडी। तो इसका मतलब होगा अगर कलर चेंज करता है दिस इज़ द पॉजिटिव रिजल्ट, नहीं चेंज करता है नेगेटिव रिजल्ट। डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट एंटीजन रैपिड टेस्ट एग्जिस्ट मेनी इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन लाइक, और हम किस चीज़ का टेस्ट करने जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंटीजन के रूप में। तो एंटीजन के रूप में जैसे हिस्टिडीन है, रिच प्रोटीन को हमने हिस्टिडीन रिच प्रोटीन को हम डिटेक्ट करने जा रहे हैं, तो उसको हम HRP2 बोलते हैं। उस स्ट्रिप का नाम क्या होगा, HRP2, और वो मोस्टली जो हिस्टिडीन रिच प्रोटीन होता है इसको हम HRP बोलते हैं। अगर इसका मुझे डिटेक्ट करना है, इस एंटीजन को मुझे पता लगाना है, और ये एंटीजन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है, तो उसके लिए हम कौन सा स्ट्रिप यूज़ करेंगे, HRP2 यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द पैन मलेरियल एंटीजन, इसको PMA भी बोलते हैं, फॉर ऑल टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम एल्डोजेज एंजाइम। सारे जो मलेरियल जो मलेरियल पैरासाइट हैं वो एल्डोजेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और उस एल्डोजेज एंजाइम को डिटेक्ट करने के लिए हम पैन मलेरियल एंटीजन यूज़ करते हैं, इसको PMA भी बोलते हैं। ये एक अलग टाइप का स्ट्रिप आता है, इसको हम किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो वाइवैक्स हो, फैल्सीपेरम हो, या जो भी कुछ हो, मलेरी हो, चारों प्रकार में हम यूज़ कर सकते हैं इस पैन मलेरियल एंटीजन में या PMA में। और एक स्ट्रिप आता है LDH, उसमें क्या होता है, एंजाइम प्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्टेज बाय इन्फेक्टेड RBC जो इन्फेक्टेड है इस प्लाज्मोडियम से, तो उसमें सेक्सुअल स्टेज या एसेक्सुअल स्टेज में क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है जिसको हम LDH बोलते हैं। तो LDH के लिए अलग से स्ट्रिप आती है, तो वो स्ट्रिप हम यूज़ कर लेंगे LDH वाला। तो इस तरीके से हम ये तमाम तरीके के यहाँ पर किट आते हैं, जिसको हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट या किट मेथड भी बोलते हैं, और ये कई टाइप की होती हैं, HRP है, LDH है, और पैन मलेरियल एंटीजन इसको PMA भी बोलते हैं। तो इतने टाइप्स की आती हैं। फिर यहाँ पर है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स भी हैं। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में क्या आता है, लेस यूज़, बहुत ज़्यादा यूज़ इसका नहीं है। इसमें हम PCR पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, इसका हम यूज़ कर सकते हैं, और इससे हम मलेरिया पैरासाइट को जान सकते हैं ब्लड में। फिर अब बात करते हैं यहाँ पर, दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्सिस। इन ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्सिस, spraying DDT is a kind of the chemical through which we can destroy the vector means mosquito and anopheles, female anopheles, and other insecticide. These are the chemical means insecticide. तो इन सब का हम स्प्रेइंग करके, इसको हम छिड़काव करके मच्छर को वहाँ से हम डेवलप होने से रोक सकते हैं। और जब मच्छर नहीं काटेगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इन्फेक्शन हमको बॉडी में कहाँ से मिलती है, ह्यूमन बॉडी में मच्छर से ही मिलती है, मीन्स कि मॉस्किटो फीमेल एनाफ्लीज से। एलिमिनेशन वाटर लॉक्ड एरिया, कहीं पे पानी भरा हो तो उसको हटा दें हम वहाँ, क्योंकि इसके लार्वा और जो प्यूपा होते हैं और उसके अंडे जो होते हैं मच्छर के, वो पानी में ही डेवलप करते हैं। किलिंग ऑफ मॉस्किटो एंड देयर ब्रीडिंग प्लेस
डिस्ट्रक्शन, जहाँ पे मस्कीटो को मारें और उनके रुकने और ठहरने की जो या उनके अंडे बच्चे देने की जो जगह होती है, पानी वाले जगह को हम ख़त्म कर दें जिससे मच्छर वहाँ पर डेवलप ना करने पाएँ। और इम्पोर्टेंट measures to avoid the bite of mosquito. And mosquito net are also useful to check the bite of the mosquito, through which we can check the spread of plasmodium, means malaria. मेडिसिन लाइक क्लोरोक्विन के नाम से बहुत ज़्यादा दवा मिलती है मार्केट में, तो क्लोरोक्विनॉन होता है ये, एंड एंटीफोलेट, ये दो ड्रग्स होती हैं, एंड एंटीफोलेट ड्रग्स पायरीमेथामीन एक ड्रग है, आर यूज्ड इन द इन्फेक्शन ऑफ द मलेरिया। मीन्स कि सबसे अच्छा तरीका यही कि हम मच्छर को काटने से रोकें, क्योंकि उसी से ही ट्रांसफ़र होता है हमारे बॉडी में। इनोकुलेट जो उसका इन्फेक्शन होता है वो हमारे बॉडी में मच्छर से ही आता है, तो मच्छर को काटने से रोकें जिससे कि हमारे बॉडी में एंट्री कर ही ना पाए, और मच्छर वाली जो जगह होती है उसको भी हम डिस्ट्रॉय कर दें। सो द स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ योर मलेरिया पैरासाइट्स चैप्टर, एंड इफ़ यू फील any doubts in concerning with this rest part of the malaria, you may simply ask with me or your class coordinator, and we will try to solve your all kinds of the problem. Okay, thank you so much.